हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। आज का वीडियो जो हम ले रहे हैं वो मॉक इंटरव्यू का है और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को टच करेंगे जिसमें कोर जावा इन्वॉल्व रहेगा। बहुत टफ क्वेश्चंस तो नहीं रहेंगे क्योंकि ही इज जस्ट नाउ लर्निंग इन थर्ड ईयर। ट्रिनिटी कॉलेज इज बिलोंग्स टू, राइट? Yes. विच कॉलेज? Trinity College of Engineering and Research. ओके, तो ट्रिनिटी कॉलेज है, कोंडवा में है कॉलेज। तो ही इज नॉट डूइंग एनी कोर्स एनीवेयर, जस्ट टू टेल यू ऑल। तो हमें इससे ये भी पता चलेगा कि कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं तो कहाँ पे अवेयरनेस होना चाहिए, किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीजें हमसे बहुत से बार छूट जाती है पढ़ते पढ़ते, और क्या क्या हम कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएगी। सो वेलकम अनुज। ठीक है, तो बात करते हैं। सो आई एम सीइंग इन योर रिज्यूमे दैट you're a computer engineering student from Yes. Trinity College, and HTML, CSS, JavaScript, Java, WordPress, you wrote that. Okay, can you explain WordPress, like what it is? WordPress is basically a platform where we don't require to write code for front-end development. Uh, in WordPress, there is a platform where we can create website like जैसे आपने WordPress पे काम किया है, थोड़ा बहुत yes, देखा है, क्या था उसमें? sir. Like we are using Microsoft Word Office. There are so many templates. Tabs होते हैं। That tabs or templates we can use directly to create front end website. ओके, तो मतलब कोड नहीं लिखना पड़ता, ऐसा बोल रहे हो आप? Yes. अब कोड नहीं लिखना पड़ता तो कोड आपके बिहाफ पे कोई तो लिख रहा होगा। Yes. बिना कोडिंग के तो कुछ बनेगा नहीं। Yes. है कि नहीं? तो कोड कौन लिखा है इसमें, किसने लिखा है? वर्डप्रेस वालों ने, करेक्ट है? तो कोड आपको रेडीमेड मिल जाता है, ऐसा बोलना चाहते Okay. है ना? ओके, तो कोई वेबसाइट बनाई थी उसने? Sir, basically I have created one blog on Python programming when I am learning the WordPress. ओके, From ब्लॉग बनाया था आपने? yes. तो जस्ट टू टेल यू ऑल, लाइक कि ब्लॉग्स के लिए बहुत सारे लोग वर्डप्रेस ही यूज करते हैं, जो इन्होंने भी किया हुआ है, एंड व्हाइल लर्निंग यू डेवलप दैट, दैट्स अगेन अ ग्रेट थिंग। Yes. So that blog is live now? No, sir. It is not live. It is Just on your... for practice. Great, great. Then SQL is there. Yes. Okay, C++, you know, Python, you know, basics. Then JavaScript, Bootstrap also you wrote, right? Yes. So can you explain like what is Bootstrap? Sir, Bootstrap is a basic platform where we can take a link of JavaScript as well as CSS when we write a code. By using that Bootstrap link, the designing part is Taken care automatically. हाँ. Correct. So just to explain, as I already said in this interview, I'm gonna answer also many things. Like Bootstrap is like a template again, like a WordPress, where you get everything designed automatically, like buttons and everything. Yes. Buttons, scrolling, Tables. data tables, everything automatically you get. So you don't need to write code from the scratch, right? So Bootstrap makes your things easier. Okay, but in WordPress, everything is inbuilt. Here, designing part will be taken care, right? Okay, so you are aware about it, right? Yes. Coming to Java, like in Java, some basic questions I'll be asking. You know, inheritance. Yes. How to develop inheritance? Inheritance basically is used when some methods in a parent class can be accessed to the child class. So basically we write a parent class and inheritors that methods in a child class. So after creating the object of child class, we can directly access the methods in parent class without creating. इससे क्या फायदा हुआ आपको? अगर मैंने इनहेरिटेंस किया तो क्या फायदा हो गया? चलो, ऊपर की चीजें नीचे तो आ गई। Yes. तो फायदा क्या हुआ? हमको दो दो ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने पड़े। देखो, नहीं तो सुपर क्लास का अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, सब क्लास का अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर क्या होता, दोनों ऑब्जेक्ट से अपनी अपनी मेथड्स, वेरिएबल्स यूज हो जाते। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, केवल सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो, ऊपर की भी चीजें कॉल हो गई, नीचे की भी चीजें कॉल हो गई। गॉट द पॉइंट? Yes. या सो यू विल बी एक्सप्लेनिंग लाइक कि व्हेन वी डू इनहेरिटेंस वी यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड. Yes. All right. In extends keyword, you mentioned what is the subclass name and to whom it is extending. Then after extension, superclass things comes into the
child class automatically, and due to that you don't need to create multiple objects like superclass and subclass. Automatically everything will be accessed through a subclass object. Okay, Yes. how to create object in Java? Basically write class name and object name equal to new, variable is used, and class name. And then brackets. Yes. What is that bracket? What it is calling? What's it? Like a new a. Okay, Yes. so that new a is there, right? And then you write a brackets. Yes. What it calls? It calls constructor. What it calls? Constructor. तो constructor private हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. हो सकता है. Constructor private किया तो क्या हो जाएगा? Sir, if we create a constructor private, we cannot create object of that particular class. हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकेंगे. सेम Yes. क्लास से ऑब्जेक्ट बन पाएगा कि नहीं? Yes, sir. सेम क्लास से बनेगा, क्योंकि प्राइवेट चीजें क्या बोलती है कि सेम क्लास में तो मैं एक्सेस होती रहूंगा, Yes. है ना? नेक्स्ट, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? Encapsulation is basically thing binding of data in single entity. For example, in class, number of variables and methods are binding together. Because of encapsulation, security is increases. For example, like a capsule, multiple medicines are bind in a single capsule. Like एंड व्हाट हैपेंस विद दैट? इट वोंट Security. फेल डाउन, राइट? yes, छोटी छोटी मेडिसिन गिरेगी नहीं, वो पैक हो जाएगा, है ना? तो एनकैप्सुलेशन जावा में अपने आप ही हो जाता है ना, कि नहीं होता है? देखो आपने क्लास लिखा तो क्या हो गया वो? पैकेज बन capsule. गया, एनकैप्सुलेशन, Yes, है ना? yes. मेथड्स और वेरिएबल किसके अंदर लिखते हैं हम जावा में? Class can. इसका मतलब भी क्या है कि एक क्लास अपने आप में ही एक एनकैप्सुलेशन, Yes, सही है कि नहीं है? yes. और अच्छा एनकैप्सुलेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाना पड़ेगा और मेथड्स को क्या बनाना पड़ेगा? पब्लिक. ओके, नो प्रॉब्लम. Anuj, good. Being in a college and you came here for giving an interview, it's really awesome. So बहुत अच्छा है. बहुत सारे लोगों में डेयरिंग नहीं होता, जो आपके अंदर आपने दिखाया कि आप आ सकते हो, कर सकते हो. What is package? Basically package in package number of methods are already written and codes are written, so we can import that package, and that's why we don't require to write the code multiple times Why to import any package? to reduce number of lines and codes and efforts. Okay. So instead of that, it should be giving answer like we import package if we want to use some methods or variables of different packages. Okay. All right. Then only you import. Otherwise, it is in the same package. So no, you don't need to be importing something, right? Yes. Yeah, not a problem. Any package you know in Java? Java .util. Util is there. Yes. Lang is there. Okay. IO is there. Object is a class name. Okay. Yes, yes, So object is a class, right? yes. Given by Java, or you write that? Given by Java. Java. It is superclass of all the classes. Yes. Okay. No problem. Coming ahead little bit, we'll go ahead. You know arrays? Can you explain array? Array is a basically array is used to store the values of same data types. Okay. Multiple data type if you want to store. Yes. Okay. If I want to store string types, how you will declare array? Sorry. String डालनी है मुझे array में, तो आप declare कैसे करोगे array को? String dot array. String x then bracket equal to new string and size. Can we add more elements than the size? No, sir. No. It gives errors. Error, but it gives a exception. आप exception बोलते तो और accurate हो जाएगा, है ना? सबसे छोटा डेटा टाइप कौन सा है जावा में? Bit. बिट. बट हम लिखते समय बाइट लिखते हैं. कितने बिट का एक बाइट बनता है? 8 बाइट. इंटीजर का कितना साइज होता है? Integer 60. Sorry, 30. 4 बाइट्स. 32 bits. Perfect. 4. 32 bits. Yes. But 4 bytes. Okay. Both are the same thing. That's not a problem. इंटीजर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0. क्या होता है? 0. ओके. बूलियन का
boolean का true oblique sorry false. फॉल्स, करेक्ट। कैरेक्टर का Character null. ब्लैंक, ओके। Blank. या स्ट्रिंग का String नल, फ्लोट का float का 0.0. 0.0, डबल का 0.0, Yes. लॉन्ग का 0, काइंड ऑफ, ओके। Okay. So read all these things also, these are needed, okay. When to use what, that also you should be knowing, okay. You know access specifiers in Java? Yes. कौन से access specifier होते हैं? Public, private, protected and default. Okay, protected क्या है? Sir, basically if you write any method in a protected form, then the child class of that particular class can only access that method. Child class can access uh, that method in parent class. okay. तो protected का ऐसा होता है कि within a same package you can access, Okay. but in other package also you can access, provided you access that protected variable from the subclass. Okay. Understood? The way should be like that. If we have protected members, then we can call those members within the same package, in the same class, as well as from the different packages. But different package, wherever you are doing that time while calling, you must be calling that through subclass. Okay, understood? Yes. What is default access specifier? Basically, default access specifier is when if we don't write any access specifier to any particular variable, it is a default, and it can be accessible in a whole package. कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट है आपको? जावा का सब्जेक्ट है? नहीं सर, अभी तक जावा का सब्जेक्ट नहीं है, अभी तक सब्जेक्ट ही नहीं हुआ है। जावा का एक हुआ था PPL. ओके, तो बेसिक्स था क्या? Yes. थ्योरेटिकल था? Yes. ओके। और पाइथन का भी होगा? पाइथन सेकंड ईयर में होता है? फर्स्ट ईयर में. पाइथन फर्स्ट ईयर में होता है। Yes. सेकंड ईयर में क्या होता है? कोई सेकंड ईयर में C++ का UPS और DSU. और थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में DBMS जो SQL है उसका हाँ। अभी DSBDA चल. ओके ओके ओके। DBMS क्या है? Database management system where the database it means the data is managed, retrieved. So to manage that data, we can create database like create, insert, delete values. अपडेट क्वेरी कैसे लिखते हैं SQL में? अपडेट क्वेरी होती है? Yes sir. कैसे लिखते हैं? देखो, अपडेट, फिर टेबल का नाम लिखना होता है, फिर सेट, मतलब आप किसको कौन से कॉलम को सेट करना है, कौन सी वैल्यू, और बाद में वेयर कंडीशन, है ना? SQL में एग्रीगेट फंक्शंस? Yes. कौन सा एग्रीगेट फंक्शन पता है? Mean, max, sum. वेरी गुड। एवरेज and all these are aggregate functions. Okay. If I want to find average of all the numbers mentioned in any column, then you will be using average function like that. Okay. Order by क्या होता है? Order by? Okay. No. It is there in the SQL. Okay. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने C++ में कोडिंग की थी? Yes. या तो कुछ कोड? क्या डिफरेंस देखा आपने C++ में और जावा में? Sir, basically both are similar, but in Java, the number of lines code is increased to write a simple code like hello world. In C++, we can write in 3 to 4 lines, but in Java, we have to create number of lines to. कौन सा एडिटर यूज करते हो जावा के प्रोग्राम्स के लिए? VS कोड। Yes. ओके, तो मेन मेथड ऑटोमेटिक आ जाती है, आपको लिखनी पड़ती है? लिखनी पड़ती है। कोई शॉर्टकट पता है VS कोड में का? कोई शॉर्टकट होता है ना, जैसे विंडो को मेरे को मिनिमाइज करना है तो विंडो D दबा दिया तो मिनिमाइज हो जाता है ना? कंट्रोल X दबा दिया तो बंद हो जाता है, कुछ कट हो जाता है ना? कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है। So these are the shortcuts, right? So वैसे विजुअल स्टूडियो में कोई शॉर्टकट पता है आपको? HTML के बारे में पता है? कौन सा? एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर करने के बाद बॉयलर प्लेट आ जाता है, HTML आ जाता है। यस यस, काइंड ऑफ। तो आप जावा में भी पता कीजिए, है ना? जैसे कंट्रोल D से अपना लाइन डिलीट हो जाती है, कंट्रोल स्लैश से कमेंट हो जाता है ना? ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई प्रोजेक्ट भी किया है आपने? यस सर। कौन सा? सर बेसिकली इन PBL the group of 4 members we have created the plastic waste management system. Basically it is based on HTML, CSS and JavaScript. क्या था उसके अंदर?
सर उसमें प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो भी मैनेजमेंट होता है गवर्नमेंट, जो भी म्यूनिसिपैलिटी वो सब, सो वी हैव टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल to that team, so we can upload the details, location and तो अपलोड करते थे तो अपने आप डेटाबेस में चले जाता था क्या? no sir, we don't create a database. डेटाबेस तो ये एक It's- HTML की एक वेबसाइट थी, है ना? Yeah. ओके, तो उस वेबसाइट को कभी लाइव करके देखा आपने? No sir, not that, but some other website I You made listed live. on GitHub. ओके, गिटहब पे डाला है। तो Yes. गिटहब किस लिए होता है? GitHub is basically used to programmer are used to upload the codes and can take the codes from GitHub, and multiple operations like a team can create work on a single project by creating repository of that particular project, and multiple members can access that repository. कोई रियल टाइम एग्जांपल बताओ इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का सोचो, सिंपल पेरेंटेंट चाहिए, ओके, पप्पा और उसका बच्चा, यस ये भी तो एक इनहेरिटेंस ही है, Yes. रियल टाइम है या नहीं? यस सही है ना? मतलब उनके फीचर्स बच्चे में आते हैं अपने आप, ये आपने भी देखा होगा, जेनेटिक होता है ना ये। यस तो ये दिस आर ऑल एग्जांपल्स। सो व्हाट आई वांट यू टू डेवलप अ स्किल कि लाइक आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना है अभी, है ना? तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। ये इंटरव्यू एक प्रिलिमिनरी स्टेज हम समझेंगे, है ना? जहां आप इतने दूर आए, ट्रिनिटी कॉलेज से आज आप किरण एकेडमी में आए, हम दोनों एक मिनट से बात कर रहे हैं, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको भी एक एक्सपोजर आया होगा, है ना? तो आपको समझ आया कि क्या होता है क्या नहीं। तो मैं आपका ये तो इंटरव्यू रिलीज करूंगा, इसके बाद और एक इंटरव्यू आपको देने का मौका देता हूँ जिसमें आप थोड़ा सा और बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी तो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में था कि मैं भी इधर भी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता था, राइट? ओके, बट आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, आपने अपना नॉलेज दिखाया, आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, आप खुद से कोई प्रोजेक्ट किया करके बोल पाए, करेक्ट? यस एंड इट वाज रियली वंडरफुल। आपने एसक्यूएल के भी मेरे एक दो क्वेश्चंस को हैंडल किया, एग्रीगेट फंक्शन जैसे मैंने पूछा, है ना? तो कॉलेज में पढ़ते हुए लड़कों को बहुत सारे ये पता ही नहीं होता है कि नहीं? यस डीबीएमएस के बारे में मैंने पूछा तो आप उसके बारे में बात करते गए, तो आपको सब्जेक्ट्स के बारे में भी उतना ही नॉलेज होना चाहिए, राइट? यस तो इस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स है आपको? इस सेमेस्टर में वेब टेक्नोलॉजी है, बेसिकली वेब थोड़ा बताओगे वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में क्या है? वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में सर बेसिकली नाउ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पार्ट इज गोइंग। कौन पढ़ा रहा है वेब टेक्नोलॉजी? गीतिका नारंग। गीतिका मैडम, है ना? यस ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो 12th जो है सब कुछ आपने पुणे से ही किया है? पुणे की हो क्या? यस वेरी गुड। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी तो ये तो हो गया, गुरुदेव दत्त विद्या शिरूर से। बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपको भी इंटरव्यू देके? यस सही है। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो, जावास्क्रिप्ट क्यों होती है? JavaScript is used to make website dynamic. So dynamically alert prompt message can be shown on our website by using JavaScript. HTML CSS cannot do that operation. तो HTML CSS डिजाइनिंग करते हैं, Yes. है ना? एनीवे, सो अनुज, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वर एबल टू आंसर। मैंने आपको इनवाइट किया था और आप लोगों ने एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आई होप यू आल्सो एंजॉयड। और मैंने गाइड भी किया बाकी लोगों के लिए भी। देखिए, जो कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में हम इतनी ज्यादा पढ़ाई दूसरी चीजों की नहीं कर सकते, क्योंकि एकेडमिक्स बहुत बड़ा होता है, वहां पे भी आपको परसेंटेज स्कोर करने होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्क्स मिलाना आवश्यक होता है। बट जो प्लेसमेंट वाली कंपनीज होती है उनको इन डेप्थ आपकी पूरी नॉलेज चाहिए होती है, लॉजिक लिखते आने चाहिए, बहुत सारी चीजें वो एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है वो भी प्रिपेयर करेंगे, और नीचे दिए गए फॉर्म को आप भरिए और आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ बैठना है, दूसरे कॉलेजेस के भी बहुत सारे लड़कों के हम इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत सारे ये ट्रिनिटी कॉलेज से थे, तो वैसे ही आप भी कर सकते हो। मिलते हैं एक दूसरे इंटरव्यू में फिर से उसी कॉलेज के किसी लड़के के साथ, और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर पाते हैं और मेरा गाइडेंस उनको क्या मिल पाता है, क्या फीडबैक देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन एट द लास्ट, यू डोंट नीड टू जज अनुज, you need to only judge myself, Kiran. You need to listen my questions, pause it and answer by yourself. Thank you. See you again. Bye bye.